بات کریں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے کیس کی، جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ کوکین کوئن کا مزید 11 مقدمات میں عدالتی ریمانڈ جسمانی ریمانڈ میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس 15 مقدمات میں 22 مئی تک ملزمہ سے تفتیش کرے گی اور میڈیا کو عدالتی کارروائی کی کوریج سے بھی روک دیا گیا۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی تمام مقدمات میں جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر بھیجنے کے تمام فیصلے کالعدم قرار دے کر پولیس کو ہدایت کی کہ ملزمہ کو جسمانی ریمانڈ کے لیے متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔ درخشاں اور گزری پولیس نے 11 مقدمات میں ملزمہ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر شکیل عباسی نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جبکہ ملزمہ کے وکیل زین علی آغا نے مخالفت کی۔ ملزمہ نے ایک مرتبہ پھر دوران سماعت پولیس افسر پر تشدد کا الزام لگایا۔ عدالتی اجازت سے ملزمہ کی کورٹ روم میں وکلاء صفائی سے ملاقات بھی کروائی گئی۔ عدالت نے عدالتی ریمانڈ کو جسمانی ریمانڈ میں تبدیل کر دیا اور پنکی کو 22 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کو اب تک 4 مرتبہ جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ ملزمہ دوران تفتیش نئے انکشافات کر رہی ہے۔ کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ لیاقت علی رانا، سما، کراچی۔ پنکی کے نیٹ ورک سے جڑا ہے کون پردہ اٹھنے کو ہے۔ کئی معتبر لوگ پنکی کے لسٹ میں موجود، سب جلد سامنے آئیں گے، ایسا کہنا ہے آئی جی سندھ جاوید عالم اوجھو کا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس کیس میں جو ملوث ہوگا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ وہ لسٹ جو ابھی تک نام آئے وہ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں بڑے ایسے نام بھی ہیں جو معتبر ہیں۔ خامخواہ کسی کو ملائن کرنا نہیں چاہتے، لیکن جو سپلائر ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بلک میں لے کے اس سے آگے بیچتے تھے وہ زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ وہ بھی سپلائر کا کام کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ سب نام الٹیمیٹلی آپ کے ہوں گے، آپ کے پاس انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ بینکنگ کے جب آ جاتے ہیں مسائل اور ان کی انفارمیشن آ جاتی ہے تو پولیس ڈائریکٹلی نہیں لے سکتی ہے۔ ایف آئی اے کو لکھ کے اپنی تفتیش میں ان کو ملا لیا ہے۔ ایسے بہت سے اکاؤنٹ ملیں گے، ہمارے خدشہ ہے اور ہماری امید بھی ہے ادھر بھی پرچہ ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ الٹیمیٹلی ایف آئی اے میں بھی کوکین کوئن کو پہلی عدالتی پیشی پر پروٹوکول دینے والوں کی بالآخر چھٹی کر دی گئی ہے۔ ایس ایس پی سٹی سید علی حسن کو معطل کر دیا گیا۔ چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی جانب سے ایس ایس پی سٹی کی معطلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کی عدالت میں پیشی کے دوران بد انتظامی اور نااہلی پر ایس ایس پی سٹی کو معطل کیا گیا۔ یہاں ہم خبر انمول عرف پنکی کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پنکی سے رابطے میں رہنے والے سی ٹی ڈی کے 2 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ بات کریں گے اسی سے متعلق، شاہنواز علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہنواز، کیا معلوم ہو پایا؟ دیکھیں، بالکل جس طرح آئی جی سندھ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پنکی کے گرد جو ہے مزید گھیرا تنگ کیا جائے گا، تو آج یہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ سی ٹی ڈی کے جو 2 اہلکار ہیں ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ جو اہلکار ہیں ان کی شناخت جو ہے کفیل اوان اور سپاہی علی قریشی کے نام سے کی گئی ہے۔ دونوں کو جو ہے حراست میں لیا گیا ہے اور ان پر الزام ہے کہ وہ پنکی سے رابطے میں تھے۔ تاہم سی ٹی ڈی کے اندر بھی ایک جو ہے ملزمہ کا کیس سامنے آ گیا ہے۔ 2018 میں پنکی اوپر 9C کا جو ہے مقدمہ درج کیا گیا تھا، منشیات فروشی کا الزام تھا۔ تاہم اب اس کیس کی جو ہے پیروی سی ٹی ڈی کرے گی اور اپنے کیس کے اندر وہ پنکی کی گرفتاری بھی ڈالے گی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورہ آذربائیجان کے دوران ورلڈ اربن فورم میں قائم پنجاب پویلین کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وہاں موجود مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا۔ مریم نواز نے عالمی وفود اور میڈیا نمائندگان کو پنجاب کے افورڈیبل اربن ہاؤسنگ منصوبے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ پویلین میں اس منصوبے پر مبنی خصوصی دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر دم تیار۔ وطن عزیز کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمان انسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب، کہا آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے۔ افغان طالبان سے جڑے دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کے سہولتکاروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق میں بھارتی غرور خاک میں ملانے پر فیلڈ مارشل سمیت افواج پاکستان کو ایک بار پھر خراج تحسین۔
मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा, फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब के दौरान पाकिस्तान दुश्मनों को ललकार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तारीखी कामयाबी पर बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए वाज़े किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हरदम तैयार है। It is my profound honor and a pleasure to be here amongst the brave sons and daughters of Pakistan. I salute the military leadership. No enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। अफगान तालिबान से वाबस्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज और उनके सहूलतकार बहादुर पाकिस्तानी अफवाज के निशाने पर हैं। वतन अजीज के खिलाफ किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। The ongoing Ghazab lil Haq campaign has instilled fear into the heart of our enemy. It is our firm resolve that we will not rest until we eradicate the menace from the face of Pakistan. इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई व आलमी अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर करते हुए कहा, हमारे दानिशमंदाना तर्ज अमल और मौक़िफ़ को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। दुश्मन दहशत गर्दों की सरपरस्ती और मनफी प्रोपेगेंडा करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पाकिस्तान अपनी तरक्की की डगर पर बढ़ता चला जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुल्क दुश्मनों को ललकार। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब करते हुए कहा, मुसल्लह अफवाज अवाम की हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। क्वेटा गैरिजन के दौरे में कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी खत्म करके रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान के दुश्मनों को दबंग पैगाम, दो टोक बता दिया कि बैरूनी सरपरस्ती में दहशत गर्दी और प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान की तरक्की रुकने वाली नहीं। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को रियासत और अवाम की यकजहती नाकाम बना देगी। सिपह सालार का मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा, बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की नागुज़ीर करार दे दी। कोयटा गैरिजन के दौरे के दौरान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब, आला तरबियती मियार को सराहते हुए जदीद जंगी तगाज़ों से हम आहंग रहने पर जोर दिया। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने की हिदायत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। बलूचिस्तान में अवामी बहबूद और समाजी तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में एपिक्स कमेटी का इजलास, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त, मनसूबाबंदी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने इंसदादी दहशत गर्दी के इक़दामात पर फील्ड मार्शल और पाक अफवाज को खिराजी तहसीन पेश किया और सूबे में अवामी फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला सरफराज बुगटी के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के रुखशान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत की। इजलास में फील्ड मार्शल, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और दीगर ने शिरकत की। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 17 मई से जारी सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में 22 ख्वारिज हलाक हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। मारे गए दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक ख्वारिज मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान डील की भीख मांग रहा है। वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गए हैं। उम्मीद है हमें कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया टॉक, कहा ईरान पर हमले से 1 घंटा दूर थे। जंगी जहाज़ों पर मिसाइल भी लोड हो चुके थे। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दरख्वास्त की गई और फैसला मौखर किया। बमबारी के बगैर मामलात तय हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अमरीकी सदर धमकी को अमन का मौका कह रहे हैं। ईरान किसी भी जारहियत का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि हमारे यहाँ सरेंडर की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी कमीशन इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अमरीकियों को हमारी शराइत के सामने हथियार डालना होंगे। जारहियत के जवाब में अमरीकी सदर को मज़ीद शर्मिंदा करेंगे। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा, ईरानी अफवाज हर किस्म की जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दोबारा हमले की सूरत में फौरी, फैसला कुन और वसी पैमाने पर रद्द अमल सामने आएगा।
बड़ी और अहम खबर आपको दें कराची से। कराची में भत्ता खोर एक बार फिर सर उठाने लगे। 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता खोरी के 4 वाकयात सामने आ गए हैं। न्यू कराची में 2, नॉर्थ कराची और सदर में 2 दुकानदारों को पर्चियां मिली हैं। भत्ता खोरों की धमकी आमेज ऑडियो मैसेज और पर्चियां समा ने हासिल कर ली हैं। मजीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, बताइए इस हवाले से अभी क्या तफसीलात आपके पास हैं? देखिए, कराची में भत्ताखोरी पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। गुज़िश्ता अगर हम बात करें चंद माह पहले भी भत्ताखोरी की एक लहर आई थी, जिसका पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की और कुछ कंट्रोल किया, लेकिन अब 10 रोज में 4 वाकयात हुए हैं। 13 मई को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदार को 25 लाख रुपए भत्ते का एक ऑडियो मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया कि अगर भत्ता नहीं दिया गया तो उसकी जान को खतरा ला गया। इसके साथ साथ न्यू कराची की अगर हम बात करें, वहाँ पर 9 मई को एक दुकानदार से 16 लाख रुपए और 17 मई को एक दुकानदार से 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। नागन चौरंगी में एक दुकानदार को 15 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। और तमाम इन चारों वाकयात में अगर हम देखें तो जो एक ऑडियो मैसेज था या जो पर्चियाँ थी, उसमें ये धमकी दी गई कि अगर पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारे को बताया गया तो उनके और उनके ख़ानदान को नुकसान पहुँच सकता है। और उसके साथ साथ 2 वाकयात में ये दिखा है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है, कि एक वारदात में भत्ते की पर्ची देने के लिए मोटरसाइकिल पर मर्द और औरत आते हैं और भत्ते की पर्ची देके जाते हैं, और एक और वाकये में नशे के आदी शख्स को भत्ते की पर्ची दुकानदार तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में दुकानदारों ने थाने को एक मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी और प्रेडी थाने ने जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदार को भत्ते की पर्ची मैसेज मौसूल हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पुलिस के लिए एक फिर चैलेंज, 10 रोज में भत्ताखोरी के लिए 4 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इससे एक अलग ये रहा है कि जिस तरह ताजरों ने ये शिकायत की कि न्यू कराची के जो इलाका है उसमें भत्ताखोरी के वाकयात बढ़ रहे हैं और मुसलसल भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये और भी पर्चियां दुकानदारों को मिली है। लेकिन ये अभी 3 वाकयात। असलम, आपसे एक बार फिर से बात करेंगे। भत्ताखोरों की धमकी आमेज ऑडियो मैसेज हमें मौसूल हुआ है, वो जरा अपने अवाम को सुनाते हैं पहले। सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हो? तबीयत ठीक ठाक है? देखो, मैंने तुम्हें मैसेज लिख के भेजा है ना, इसका जवाब मुझे दे, ठीक है ना? अगर कोई भी तूने होशियारी किया, अगर आगे पीछे गया, मेरा नंबर किसी को दिया तो उसी टाइम तुम्हें दूंगा। मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही है, समझा ना? असलम खान, कहिएगा, ये ऑडियो मैसेज आपने भी सुना होगा, जिस तरह से वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अगर मैसेजेस या कॉल्स या नंबर आगे दिया गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की धमकी आमेज मैसेजेस आ रहे हैं। पर्चियां भी समा ने हासिल कर ली हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि एक ख़तरनाक सूरत हाल है कि धमकी आमेज उसके ख़ानदान को और उसको नुकसान पहुँचाने की धमकी। फिर जो पर्चियाँ मिली हैं उसमें भी ये कहा गया है कि पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को ना बताया जाए, और हर चारों अगर हम केसेस देखते हैं तो उसमें यही खबरदार किया गया है कि उन पर नज़र रखी जा रही है। जो लड़के हैं वो टारगेट पर बैठे हुए हैं, वो दुकानदार अगर पैसे लेकर वहाँ तक नहीं पहुँचा तो उनको या उनके ख़ानदान को, जो मुतासरा दुकानदार है, उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो ये एक, मैं कहूँगा कि तशवीशनाक सूरत हाल। पहले भी एक लहर आई थी जिस पर पुलिस ने किसी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन फिर ये वाक़यात सामने आए हैं और न्यू कराची में ताजरों का कहना है कि ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। ये 3 वाक़यात सामने आ गए हैं और कुछ दुकानदार यकीनी तौर पर अभी सामने नहीं आए होंगे जिन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की होगी, लेकिन पुलिस तक जो रिपोर्ट पहुंची उसमें न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 2 दुकानदारों ने रिपोर्ट किया और उसके साथ साथ ठीक है, 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में भत्ताखोरी के 4 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। असलम खान, ब्यूरो चीफ कराची, हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत सुना दी गई। दीगर दफात में मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं भी सुनाई गई हैं। अदालत ने मुजरिम उमर हयात को 20 लाख रुपए हर्जाना भी अदा करने का हुक्म दिया। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। इक़्तिदार में दिन दिहाड़े कत्ल होने वाली सना यूसुफ को 11 माह बाद इंसाफ मिल गया। मुजरिम उमर हयात को मौत की सजा, मकतूला के अहले खाना को 20 लाख रुपए ज़र तलाफी भी अदा करेगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मैं खुश हूँ, अल्लाह करे बस ऐसे ही इंसाफ मिल जाए पाकिस्तान में, मुजरिम को सही सजा मिल गई, सरेआम मतलब इसको फांसी हो। मीडिया ने हमारा साथ दिया, हम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार है। पुलिस वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। मुआशरे को इंसाफ मिला, मुझे इंसाफ मिला, जुडिशरी के लोगों का, स्टेट का, पुलिस का,
तमाम दोस्तों का जिन्होंने आवाज़ उठाई है, इंटरनेशनल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजरिम को डकैती की दफ़ा के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत, 2 लाख रुपए जुर्माना। हत्या इज्जत की दफ़ा 499 में भी 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। चोरी का माल रखने की दफ़ा 411 के तहत 1 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। कैद की तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। बात करें ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के केस की, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ नए इंकशाफात हो रहे हैं। कोकेन क्वीन का मजीद 11 मुकदमात में अदालती रिमांड जिस्मानी रिमांड में तब्दील हो गया। पुलिस 15 मुकदमात में 22 मई तक मुल्जिमा से तफ्तीश करेगी और मीडिया को अदालती कार्रवाई की कवरेज से भी रोक दिया गया। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर भेजने के तमाम फैसले कलअदम करार देकर पुलिस को हदायत की कि मुल्जिमा को जिस्मानी रिमांड के लिए मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। दरख्शां और गिजरी पुलिस ने 11 मुकदमात में मुल्जिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि मुल्जिमा के वकील जैन अली आगा ने मुखालफत की। मुल्जिमा ने एक मरतबा फिर दौरान समाअत पुलिस अफसर पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। अदालती इजाजत से मुल्जिमा की कोर्ट रूम में वकलाए सफाई से मुलाकात भी करवाई गई। अदालत ने अदालती रिमांड को जिस्मानी रिमांड में तब्दील कर दिया और पिंकी को 22 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दे दिया। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अब तक 4 मरतबा जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जा चुका है। तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि मुल्जिमा दौरान तफ्तीश नए इंकशाफात कर रही है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। पिंकी के नेटवर्क से जुड़ा है कौन कौन, पर्दा उठने को है। कई मोतबर लोग पिंकी के लिस्ट में मौजूद, सब जल्द सामने आएंगे, ऐसा कहना है आईजी सिंध जावेद आलम ओझू का। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस केस में जो मुलव्वस होगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आपके साथ वो लिस्ट जो अभी तक नाम आए वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे नाम भी हैं जो मोतबर हैं। खामखा किसी को मिलाइन करना नहीं चाहते, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। बल्कि में लेके इससे आगे बेचते थे वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो भी सप्लायर का काम कर रहे हैं। उनको किसी भी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। सब नाम अल्टीमेटली आपके होंगे, आपके पास इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बैंकिंग के जब आ जाते हैं मसाइल और उनकी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो पुलिस डायरेक्टली नहीं ले सकती है। FIA को लिख के अपनी तफ्तीश में उनको मिला लिया है। ऐसे बहुत से अकाउंट मिलेंगे, हमारा खदशा है और हमारी उम्मीद भी है उधर भी पर्चा होगा। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अल्टीमेटली FIA में भी। कोकेन क्वीन को पहली अदालती पेशी पर प्रोटोकॉल देने वालों की बिल आखिर छुट्टी कर दी गई है। SSP सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की जानिब से SSP सिटी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी के दौरान बद इंतजामी और नाअहली पर SSP सिटी को मुअत्तल किया गया। यहाँ हम खबर अनमोल उर्फ पिंकी केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पिंकी से राबते में रहने वाले CTD के 2 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। बात करेंगे इसी से मुतालिक। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, क्या मालूम हो पाया? देखिए, बिल्कुल जिस तरह आईजी सिंध की जानिब से दावा किया गया था कि पिंकी के गिर्द जो है मजीद घेरा तंग किया जाएगा, तो आज ये अपडेट सामने आई है कि CTD के जो 2 एहलकार हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। जो एहलकार हैं उनकी शनाख्त जो है कफील अवान और सिपाही अली कुरैशी के नाम से की गई है। दोनों को जो है हिरासत में लिया गया है और उन पर इल्ज़ाम है कि वो पिंकी से राब्ते में थे। तमाम CTD के अंदर भी एक जो है मुल्जिमा का केस सामने आ गया है। 2018 में पिंकी ऊपर 9C का जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, मंशियात फरोशी का इल्ज़ाम था। ताहम अब इस केस की जो है पैरवी CTD करेगी और अपने केस के अंदर वो पिंकी की गिरफ्तारी भी डालेगी। हैदराबाद में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए लेडी मनशियात फरोश अम्बरीन उर्फ गुड्डी चांडियो को गिरफ्तार कर लिया है। SSP हैदराबाद शाहजेब चाचड़ का कहना है कि गुड्डी चांडियो रिटायर्ड DSP की अहलिया है, जिसका नेटवर्क तालीमी इदारों तक फैला हुआ है। यहाँ पेशरफ्त हुई है। हैदराबाद में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए लेडी मनशियात फरोश अम्बरीन उर्फ गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से फैसलाबाद तक मनशियात का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। फैसलाबाद में पुलिस ने मनशियात फरोशी में मुलव्वस 70 से जायद खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। बेशतर खवातीन तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के अतराफ मनशियात फरोख्त करती रहीं और इस सिलसिले में पकड़ी भी गई हैं। RPO फैसलाबाद सुहेल अहमद सुखेरा के मुताबिक मनशियात फरोश गैंग की सरगना शाहिदा, राबिया, आसिया और सायरा को भी
हिरासत में ले लिया गया है। अहम पेशरफ सामने आई है जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हैदराबाद से लेके कराची तक और कराची से लेके फैसलाबाद तक मनशियात का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। फैसलाबाद में पुलिस ने मनशियात फरोशी में मुलव्विस 70 से ज़ायद खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज है आपको। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर मुंतकिली से मुतालिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। तफ्तीशी टीम ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाजत मांग ली। अनमोल पिंकी लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में मतलूब है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कहा है 5 मुकदमात की तफ्तीश में अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक खामोशी इख्तियार की गई थी। मुलजिमा को तहवील में लेकर तमाम मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। मुलजिमा को कराची से लाहौर लाने के लिए दस्तावेज़ात मुकम्मल की जा रही हैं। मुलजिमा अनमोल पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। कडियाला जेल जाने से रोकने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का एहतजाज। कारकुनान के साथ 26 नंबर चुंगी पर धरना दे दिया। 5 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद जीटी रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुल्हिका सड़कों पर भी शदीद ट्रैफिक जाम रहा। मोटरवे पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाला ट्रैक खोल दिया गया। सुहेल आफरीदी और बानी पीटीआई की बहनों का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक बैठे रहेंगे। वज़ीर आला अडयाला जेल के चक्कर लगाने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुतालबा सूबे में बदअमनी, महंगाई और करप्शन में इजाफे पर केपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रोजमर्रा په بنیاد باندې د پولیس شهدا او د پولیس لاشونه مونږ اوچتو بل خواته کومږ وګورو د پی ټی آی ګورنمنت د پی ټی آی حکومت د ریاست دا بل طرف ته د خپل لیډر د رهایی د پر احتجاجونه خو کوي کار خو دی ول نه پکې زموږ د صوبې دغه د کنه مشر دی نو پکار خو چې منډه ترړ وای ولې نه نن سبا په جلسو کې دغه سه مصروف دی کنه نو پکار چې خپل صوبې لپاره منډه وای دغه چې غربت ډیر زیات نو دا د حکومت ذمہواری جوړیږي سر جی بل زموږ وزیر اعلی صاحب ته مونږ دا خواست کوو چې لګ دی خو دی عوامو لم توجه ورکړي بيخي ځان سکرین آؤٹ کړی دی او جی او بچ دا چې پیدا شنو د سوي بس هلته جلسه دا دلته جلسه فرست کوم دی اول پرایورټي کومه دی غس خپل صوبې وزیر اعلی دی غد صوبې کوم امن او امان دی دغه حل کېدو کوشش وکړي